Hello children. Today we are going to discuss remaining questions of run through of chapter 13. Question 1 to 8 we have already discussed. If you want to check it, then check the playlist of run through of class 7th wow book. Okay. Now question number 9. Label the angles formed and find the value of x and the magnitude of the remaining angles. अब इसमें आपको लेबल करना है एंगल्स जो भी फॉर्म हो रहे हैं. अब लेबल नहीं भी करते हो तब भी ये सोल्व हो जाएगा. अगर करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो. दिस इज एंगल 1 2 3 4. ओके. अब इसमें हम कुछ देखते हैं. ये अगर स्ट्रेट लाइन देखते हो तो इसको हम लीनियर पेयर बोलेंगे. ये पूरे एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. और एडजेसेंट एंगल देखते हैं. x 40 डिग्री, दीज आर एडजेसेंट एंगल. अगर आप x और x को देखते हो तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं है. ओके. तो 40 और x या 50 और x ये एडजेसेंट एंगल है. अगर ये पूरा एंगल आप लेते हो उसके साथ x फिर एडजेसेंट होगा. ओके. इसमें अब हम देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 that will be equal to 180 degree and this is by linear pair. Now we will write angle 1 is x plus 40 degree plus x plus 50 degree equal to 180 degree. X plus x 2x, 40 plus 50 90. That is equal to 180. Transposing 90 to right hand side we will get 180 minus 90 degree. That is equal to 2x equal to 90 degree and x will be equal to 90. 2 is multiplied by x. When we will transpose this then we will get 90 divided by 2. That is equal to 45 degree. x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी. सो x इक्वल टू 45 डिग्री. ओके. नाउ बी पार्ट में देखिए. अब लेबल में अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो लेबल करना है तो ABCDEF ऐसे O ऐसे करके आप कर सकते हो. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एंगल 1 2 3 4 आप ऐसे करिए. अगर आपको करना है तो मैं आपको मना नहीं करूंगी, आप करिए. ओके. हो सकता है टीचर ने आपको ऐसे ही बोला हो कि इसको लेबल करना है ABCDE और यहाँ पे O पॉइंट. ओके. तो वैसे भी आप कर सकते हो. अब इसमें देखते हैं हम. सेम देखिए ये एक लाइन फॉर्म हो रही है. जहां भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी वहां पे आप लीनियर पेयर वाला यूज करेंगे. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. And this is by linear pair. Now we will put value of angle 30 degree plus 2x minus 10 plus x plus 10 plus 15 that is equal to 180 degree. Now we will collect the same variable that is 2x and x. These two are same. So 2x plus x 3x. प्लस नाउ 30. अब देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है तो 10 माइनस 10 ये कैंसिल हो जाएगा. 30 प्लस 15 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ ट्रांसपोजिंग 45 टू राइट हैंड साइड वी विल गेट 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. दैट इज इक्वल टू 135 degree. Now transposing 3 to right hand side we will get x equal to 135 divided by 3. 3 4s are 12, 3 5s are. That is equal to 45 degree. ये x की वैल्यू है. Now we have to find out 2x minus 10. 2x minus 10 करेंगे तो 2 into value of x is 45 minus 10 that will be equal to
2 into 45 90, 90 minus 10 equal to 80 degree. This is angle 2. Now angle 3, that is equal to x plus 10 degree. Value of x 45 plus 10 equal to 55 degree. नाउ सी पार्ट में भी हमने सेम ऐसे ही करना है. एंगल 1, 2, 3, 4 and 5. Sum of angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 that will be equal to, यहां पे क्या है, एक पॉइंट है, पॉइंट के राउंड ऑफ दैट इज अ कंप्लीट एंगल, मीन्स सम ऑफ ऑल एंगल विल बी इक्वल टू 360 degree. This is complete angle. Now value of 1, 2 and all, 2x plus 65 degree plus 40 degree plus 60 degree plus x, that is equal to 360 degree. Now same, 2x plus x, 3x plus 60 plus 40 100, 100 plus 65 165 degree, that is equal to 360 degree. 3x will be equal to 360 minus 165. ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस होगा ये. 3x इक्वल टू 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 5 माइनस 6 9, 15, देन 2 माइनस 1 1. x विल बी इक्वल टू 195 डिवाइड बाय 3, 3 6 जा 3 5 जा, x इक्वल टू 65 डिग्री. एंड वैल्यू ऑफ एंगल 1, ये आप इधर करना, एंगल 1 विल बी इक्वल टू 2x, दैट इज 2 इंटू 65, 130 डिग्री. And angle 5 equal to 65 degree. Okay. Now question number 10. In the figure, ABC is a triangle with angle B equal to 60 degree. PQ is parallel to BC. Find the measure of angle X and Y. First we will note what is given. Angle B equal to 60 degree. Then PQ is parallel to BC. PQ is parallel to BC. ये इसके पैरेलल है. अब देखिए जहां भी पैरेलल आता है तो सीधी सी बात है कि जो AC है वो इसमें ट्रांसवर्सल होगी, और पैरेलल में जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल या ऑल्टरनेट एंगल, जो भी प्रॉपर्टी लगेगी वो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इसमें. ओके. अब इसमें देखते हैं हम, अगर इस एंगल को हम मान लो पूरा नाम ही लेते हैं हम, एंगल पी ए बी. जो एंगल हमें नोट करना होता है ये वाला एंगल, तो बीच में ये वाला पॉइंट होना चाहिए, पी ए बी और बी ए पी. ओके, किसी भी तरह से आप नोट कर सकते हो. ये इक्वल टू कितना होगा, अब इसमें देखिए ये लाइन ए बी ये हो गई पैरेलल क्यू पी, और ये बी हो गई बी सी, और इसने क्या दिया है कि ये वाला एंगल बी ये 60 डिग्री है. अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल हो गई ए बी, और ये पैरेलल अगर इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा 60 डिग्री. समझ आया ये? इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स. और अगर आप इंटीरियर बोलना चाहते हो तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, तो ये 60 डिग्री हो गया. अब हम देखते हैं एंगल y क्या होगा. एंगल यहां पे मैं नोट करती हूं, मेजरमेंट ऑफ एंगल y प्लस 50 डिग्री प्लस ये हमारे पास कितना आया 60 डिग्री आ गया.
plus 60 degree, that is equal to 180 degree, and this is by linear pair. Measure of angle y will be equal to, अब इसमें इनको ऐड करते हैं, प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. मेजर ऑफ एंगल y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री. ओके, मेजर ऑफ एंगल दिस वन इज 70 डिग्री. अगर ये 70 डिग्री है तो यहाँ पे अब अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी से करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो. अगर आप कहते हो कि नहीं उससे नहीं करना तो आप इसमें देखेंगे तो QP पैरेलल टू CB है. अब ये कैसे है हमारे पास, ये ऐसे में है. ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल. सो एंगल मेजर ऑफ एंगल y विल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल x, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, ये हमारे पास आ गया. और इसमें रीजन क्या देंगे हम, ऑल्टरनेट एंगल. प्रॉपर्टी बच्चे याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गिवन एंगल ABC इक्वल टू 40 डिग्री, रोहन मार्क्ड एंगल AED ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री, वॉज ही करेक्ट, गिव रीजन. इसमें देखिए ये 40 डिग्री है, रोहन ने क्या किया कि ये एंगल भी 40 डिग्री मार्क कर दिया. आपको बताना है क्या ये ठीक है. अगर ठीक है तो उसका रीजन देना है, और अगर ठीक नहीं है तो उसका रीजन देना है. तो इसके लिए देखिए, अगर ये 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री होता है बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल. लेकिन कब होता है, जब दोनों लाइन पैरेलल हो. जब दोनों लाइन पैरेलल हो तब ये 40 डिग्री होता है. लेकिन लाइन क्या पैरेलल है. अब आप बोलोगे हमें कैसे पता. बच्चे आप देख सकते हो ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है. पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा डिस्टेंस इक्वल होता है. इसमें तो ये इक्वल है ही नहीं. अगर ये इक्वल नहीं है तो ये एंगल भी 40 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके ये लाइन एक दूसरे को फिर इंटरसेक्ट करेगी जब आप इसको एक्सटेंड करोगे. क्योंकि इसमें जो ये डिस्टेंस है, एक साइड में 2 है, एक साइड में 3 है. अगर ये दोनों 3 सेंटीमीटर होता तो ये करेक्ट था. ओके, सो इसमें हमें जो नोट करना है वो मैं नोट कर देती हूं. रोहन मार्क्ड एंगल AED was wrong because, रीजन देना इसमें, बिकॉज एंगल ABC विल नॉट बी इक्वल टू एंगल AED. ओके, और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है. क्यों नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स always be same. ये हमेशा सेम होता है, बट there is no same distance between P एंड Q ले लीजिए इसमें. ओके, P एंड Q लाइंस, ये आप नोट कर देंगे. अगर ज्यादा शॉर्ट में आपको करना है तो डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, रोहन मार्क्ड रोंग बिकॉज लाइन P एंड Q आर नॉट पैरेलल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, if CD parallel to EF and GH parallel to IJ, find angle X and Y. अब देखिए जो पैरेलल गिवन है, पहले उसकी प्रॉपर्टी हमें इसमें यूज करनी होगी. CD is parallel to EF
एज सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, अगर हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं, ये वाला एंगल, ओके, तो ये 80 और ये एंगल ये भी 80 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहां पे मैं पहले नोट कर देती हूं एंगल ई, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है? ओ पॉइंट है। ये एंगल ई ओ पी विल बी इक्वल टू एंगल सी पी ए, that is equal to 80 degree, and reason you will write corresponding angle. ओके, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये हमारे पास 80 डिग्री हो गया। अगर यहां पे आप लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो तो उससे x हमारे पास आ जाएगा। अगर आप कहते हो कि नहीं उससे नहीं करना, दूसरे से करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी आ जाएगा ये, लेकिन यहां पे मैं लीनियर पेयर यूज कर रही हूं। 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दीज थ्री एंगल्स आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। 80 डिग्री प्लस 30, 110 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। ये 70 डिग्री आ गया हमारे पास। अब आपको y फाइंड आउट करना है। अब हम दूसरा पेयर लेंगे, एज जी एच इज पैरेलल टू आई जे, देन एंगल x प्लस वाई, मेजर ऑफ एंगल x प्लस y दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमारे पास क्या होता है, देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। सेम इसमें हमारे पास है ये और ये x प्लस वाई दैट इज 180 डिग्री, एंड रीजन वी विल राइट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ this is the most important property. Angle x equal to 70 degree, angle y will be equal to, measure of angle y will be equal to 180 degree minus 70 degree, that is equal to 110 degree. Okay. Now question number 13. In the given figure, AB parallel to CD parallel to EF. Find the value of x and y. अब देखिए थ्री लाइन्स ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो AB पैरेलल टू EF होगी एंड CD पैरेलल टू AB भी होगी। ओके, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसमें अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एज AB पैरेलल टू CD, सो एंगल, अब हम एंगल लेते हैं। देखिए ये टू लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो इसमें ये 25 प्लस x, इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी, एंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमें गिवन नहीं है तो इसको हम ओ लेते हैं। ओके, बी ओ सी that will be equal to 180 degree, and reason angles on the same side of transversal are supplementary. ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज की थी प्रॉपर्टी, अब ये फिर से हो रही है। 25 डिग्री प्लस एंगल BOC हमारे पास क्या है, x, दैट इज इक्वल टू
180 degree, x will be equal to 180 degree minus 25 degree, that is equal to 155 degree. ओके, अब सेम इसमें करते हैं हम, एज CD पैरेलल टू EF, सो एंगल, अब यहां पे मैं डायरेक्ट नोट कर देती हूं, y प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. इसका रीजन ये सेम आपको लिखना है अपने आप से, सेम एज का साइन नहीं लगाना है, आप इसको नोट करोगे. y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री. y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 35 करेंगे तो 145 डिग्री. दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. In the given figure AC parallel to EF, find the value of X, Y and Z. वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और पैरेलल लाइन गिवन है AC पैरेलल टू EF. अब इसमें आपको सबसे पहले Y वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी इजी होगी. ओके, इसमें देखते हैं हम, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है. इन अ ट्राइंगल, what is the name of triangle? Triangle A B D. in triangle ABD ये हमारे पास क्या है, sum of all angle of a triangle is 180 डिग्री. ओके, सब एंगल का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री. इसमें मैं नोट करते हैं, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल, जब भी इस तरह से एंगल हो कि एडजेसेंट एंगल उसमें गिवन हो, तो कभी भी आपको 1 पॉइंट फॉर्म में इसको नोट नहीं करना होता है, आप इसको 3 पॉइंट में नोट करेंगे. एंगल DBA दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A इज 90 डिग्री, D इज 30 डिग्री, ये 90 का साइन होता है, प्लस एंगल DBA इज y इक्वल टू 180 डिग्री. 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 120 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री. ओके, ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया. देन 80 प्लस x ये सेम हो जाएगा एज AC पैरेलल टू EF. देन x प्लस 80 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड रीजन एंगल्स ऑन द सेल. ये इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर इसको, इस प्रॉपर्टी को जरूर देते हैं क्वेश्चन में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिए. ये हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री. ये हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्री. अब आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी की. अब देखिए, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा. EF पैरेलल टू BC है, ये x, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूं तो ये पूरी लाइन, ये x इक्वल टू ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल रहेगा. क्यों रहेगा, ये ऑल्टरनेट एंगल है और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं. तो यहां पे हम क्या करेंगे, x हमें नहीं लेना, y प्लस z विल बी इक्वल टू 100 डिग्री. और इसमें क्या है, रीजन क्या देंगे हम, ऑल्टरनेट एंगल. y 60 डिग्री प्लस z इक्वल टू 100 डिग्री. सो z हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री. ओके, तो ये हमारे पास सारे एंगल आ गए. z इक्वल टू 40 डिग्री, x इक्वल टू 100 डिग्री एंड y इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 15.
The figure shows the angles made by a player during a hockey game to strike a goal. Find the value of angle made at position x. आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसके लिए देखिए पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पे m गिवन है, तो m की वैल्यू क्या होगी. ओके, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे m, ये m और ये 64. अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे. m डिग्री प्लस 64 डिग्री प्लस m डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. ओके, ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये लीनियर पेयर हो गया. तो यहां से क्या आ गया, 2m प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. 2m विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ट्रांसपोजिंग 64 टू राइट हैंड साइड. देन 2m विल बी इक्वल टू 64, ये आएगा 116 डिग्री. देन m विल बी इक्वल टू 116 डिवाइड बाय 2. 2 5 जा 2 8 जा. m हमारे पास कितना आ गया, 58 डिग्री. अब यहां से आप देखोगे कि जो ये 58 डिग्री है, देखिए ये 58 और जो ये एंगल है ये 58, ये वाला एंगल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल. इसमें देखिए लाइन कैसे पैरेलल है, ये लाइन और इधर से ये लाइन और बीच में ये लाइन ऐसे. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है 58 और ये m है और इसके बाद एक लाइन इधर इन्होंने एक्स्ट्रा दी है. ये m, ये कितना है, 58 डिग्री है, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए ना ऐसे. ये 2 लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल ऐसे गिवन है. ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल है. ओके, तो यहां से अब हम क्या नोट करेंगे, एज m इक्वल टू 58 डिग्री. सो यहां पे इसको अगर हम नेम करते हैं, ये लाइन P और ये Q. सो P is parallel to Q and this. इसको अगर हम J नाम देते हैं and J Q is, ये पॉइंट O ले लो, Q मत लेना क्योंकि Q तो मैंने लाइन ली है ये पूरी. J O is ट्रांसवर्सल. ये आपको नोट करना होगा कि कौन सी ट्रांसवर्सल है और कौन सी पैरेलल है. ये ट्रांसवर्सल हो गई. अब अगर ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल x विल बी इक्वल टू, एंगल x की वैल्यू क्या होगी, 64 डिग्री. अब वो कैसे आएगी, अब यहां से देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई. x will be equal to 64. This is alternate angle. Okay, these are alternate angles. So ये equal to 64 degree होगा. Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.